Yesterday we were discussing about the chain rule. The chain rule for functions of two independent variables. This rule applies when your function is a composite function. Okay. So suppose if I'm just recalling, you have some function w. W is a function of xy, and x and y, they are some function of t. Suppose x is some function of gt, y is some function of st. Y is some function of st. So I write w is equal to xy. So w is a function of xy, and xy, they are the function of t. So here what I will find? So here w is a differentiable function. Keep in mind, w is a differentiable function of xy, and again x and y, they are differentiable functions of t. They are differentiable. Then I can find dw over dt, because here you have only one independent variable. This is called your independent variable, and these two, they called intermediate variables. Intermediate variables. So अगर independent variable आपका एक है, तो I will take dw by dt, you know, है ना, because it's like function of single variable. So dw by dt will be what? Del w is a function of xy. Del w over del x dx over dt plus del w over del y into dy by dt. Similarly, you can write plus del w over del z dz by dt. Or it may be the case when you have two independent variables. In place of one, you may have two independent variables. That means w is a function of, suppose, x, y, z, and x, y, they are function of rs, rs, and rs. That means what? So three intermediate variables here, x, y, z. So you have three intermediate variables, and how many independent variables? Two independent variables. Two independent variables. Short में IV. Then what will happen? What I will find now? We always differentiate dependent with respect to independent. तो क्या निकालें यहाँ पे? Because two independent variables. So what I will find? क्यों भाई? Del या D? बताइए. आवाज आ रही है भाई? भुवनेश कुमार? यस सर. बोलिए. What I will find है? सर डेल निकालेंगे सर. क्या होगा फॉर्मूला बताइए. क्या निकालूं? With respect to R del करना w है. by del x. हैं? बोलो भाई. Firstly, I want to find del w over del r with respect to r करा, first independent variable. तो क्या होगा? बताइए r के लिए क्या करें? del w. सर डेल w अपॉन डेल x. हाँ. और सर इनटू डेल x dx अपॉन over dr. d या del? डेल x अपॉन डेल 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 डेल. क्योंकि it is two independent variable. I told you ना, when two है तो यहाँ पर सब del का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा. प्लस नेक्स्ट r और कौन सा है? y में भी डेल r. w बाय डेल y. हाँ. इनटू सर डेल y अपॉन डेल s r del r. सॉरी सर. अभी r की बात चल रही है, यहाँ r है अभी. और
3 Del del values, W by del Z. हाँ, del Z by del R. Del R. Similarly, I can find del W over del S. ऐसे ही del S Del S. निकाल सकते हैं सेम. Del W over del X by del S plus del W over del Y over del S plus del W over del Z over del S, है ना. S में कहीं R का टर्म नहीं आएगा, R में कहीं S का टर्म नहीं आएगा, because S and R they are both independent variables, है ना. इसलिए R is independent from S, so I will have del W over del R, del W over del S. In this sense, you can find this. Like one problem, example number 3. Express del W over del R and del W over del S in terms of R and S. Express del W over del R and del W over del S in terms of R and S. If W is given to you x plus 2y plus z square, and x is given to you R upon S, y is R square plus ln f, and z is 2r. So W is a function of x, y, z, and x, y, z, they are functions some Rs. So you want to find del W over del R in terms of this. So del W over del R. तो अभी आपने फॉर्मूला लिखा था, बिना डायग्राम यू हैव x, y, z, और ये आपके सब ये तीनों आर एस के फंक्शन है. ऐसे अगर मैं डायग्राम बनाऊं इसका, ब्रांच डायग्राम लाइक दिस, है ना, वही पीछे पे. तो यू वांट टू फाइंड डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर. बताइए वैल्यू, बताइए क्या आएगी फॉर्मूले से. फर्स्ट टर्म इज ये है फॉर्मूला, है ना. क्या लिखूं वैल्यू, बोलिए. सर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स. हाँ, तो वैल्यू बताइए डायरेक्ट कितनी हो गई. डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स इज 1. सर 1 upon S, सर 1 upon S. हाँ, 1, और डेल एक्स ओवर डेल आर, तो 1 अपॉन एस प्लस यस सर. नेक्स्ट 2 sir. और डेल 1 वाई upon S. ओवर, हाँ, 2r. 2r, देन डेल डब्ल्यू ओवर डेल 2 जेड Z sir. और एंड 2. 2, है ना. ये आ गया. So it will be how much? 1 by s 2 to 4r plus 4z. अब हमें r के टर्म में लिखना है, तो z की वैल्यू यू विल राइट इन टर्म्स ऑफ r. z was 2r, तो 4 into 2r कितना हो गया, 8r हो गया. तो 8r plus 4r 1s. 12r, तो 1 upon s plus 12r. ठीक है, z की वैल्यू r में रख दी हमने. सिमिलरली डेल w ओवर डेल s, बताइए जल्दी से. 1 into कितना आएगा, डेल एक्स ओवर डेल एस. अब एक्स के टर्म में करना है, माइनस R R upon upon S. S square. because r will treat as a constant, प्लस 2 डेल एफ ओवर डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई, तो 2 ही था. और डेल वाई ओवर डेल एस हाउ मच, बोलिए. ln सर sir. 1 upon S. 1 अपॉन एस, डेल वाई ओवर डेल एस ना. देन डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड, 2z del z over del s is how much? 0. 0. So 0 sir 0. So you have minus r by 2 by s minus r by s. ठीक, ये ऑलरेडी r s में है. So this is the answer. तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी आपकी सॉल्व, which you can do easily. माइक म्यूट करोगे ऐसा.
प्रॉब्लम 4 आप कर सकते हैं अपना, यू विल ट्राई एग्जाम्पल 4. आई एम लीविंग इट फॉर यू, इट्स होम असाइनमेंट. ऐसे अगर सिंगल वेरिएबल होगा डब्ल्यू एफ एक्स एक्स फंक्शन जी आर आर एस, यू कैन फाइंड फॉर सिंगल वेरिएबल आल्सो. Then we have implicit differentiation. Implicit. Implicit differentiation. Therefore, there are two ways of writing any function. There are in fact two types of expression. One is implicit, second is explicit. किसी भी functions को अगर you are writing in an equation, you can represent it explicitly, you can represent it implicitly. पढ़ा explicitly, implicitly, how to represent? देखिए, for example, if you can write something like this, your dependent variables are on one side and independent variables are on the other side, then that form is called explicit form. For example, you have suppose u is equal to under root x square plus y square. Suppose u is a function of xy. So here one side you have your dependent variable and on the other side you have your independent variable. It is called explicit form. Explicit form of the function. But sometimes it is not easy. You can write u is equal just like this, u plus log u is equal to some xy, like this. Now I cannot separate u is equal to something. कर सकते हैं क्या ऐसे, है ना, like this. So it is what, this is called implicit form. डिफरेंस समझ में आ रहा है? Yes, sir. है ना? So like here I cannot separate my u is equal to something, इसे हम नहीं लिख सकते, but it is your explicit form. So it means what, every, you can say every explicit function can be written as implicit form, but not every implicit form can be written as explicit form, है ना? हर explicit को हम implicit तो लिख ही सकते हैं, भाई ये implicit भी है already, but every implicit cannot be written as explicit, है ना? That is that the implicit theorem होती है जो not is your syllabus, आगे आप पढ़ेंगे, जिसमें the implicit theorem में पता चलेगा कि which functions can be written as explicitly. उसमें कुछ conditions होती है, but generally you know this thing कि where your u is a function of xy, तो I cannot separate my function. तो यहाँ पर तो आपको अगर du over dx निकालना था, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे du over dx इसका, लेकिन यहाँ अगर du over dx निकालना है तो हमें डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा. इसको लिखोगे du, फिर इसको लिखोगे 1 upon u du over dx, then you will take common du by dx, तो उसकी वैल्यू निकल कर आएगी. यहाँ डायरेक्ट you can find du over dx, du over dy, है ना? तो we have one formula also for this implicit form. Okay, इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये जैसे अभी आगे प्रॉब्लम में ये है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0. ये इम्प्लिसिट फॉर्म है एक्सप्लिसिट है, बताइए? सर implicit है. इम्प्लिसिट है ये. यहाँ पर भी आई कैन नॉट राइट y इज इक्वल टू समथिंग एक्स, इसको नहीं लिख सकता, इट इज आल्सो इम्प्लिसिट, है ना? तो इम्प्लिसिट में अगर मैं आपसे कहूँ इसका dy बाई dx निकालो, तो आपको अगर dy बाई dx निकालना है तो यू विल हैव टू अप्लाई वही फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है, 2y dy बाई dx माइनस 2x माइनस cos xy, इसको फिर करेंगे, है ना, फिर dy बाई dx करेंगे. तो दैट इज द वे which you have studied in your school times. But here now we will derive one formula for this implicit differentiation. उस फॉर्मूले से भी आपका वही निकल के आएगा आंसर जो आप इसे करके फिर कॉमन लेके करेंगे. दिस इज द इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन. तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और एक्स वाई में वाई इज अगेन सम फंक्शन ऑफ एक्स. So we will see that chain formula we can apply here for solving this implicit type of functions, for the differentiation of implicit type of functions. डिफरेंस क्लियर है आई थिंक एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का आपको?
Yes, sir. है ना? चलो, so implicit differentiation में the two variables chain rule we will apply. So here what the condition that your function fxy is differentiable? Implicit differentiation में first thing is what? The function fxy, कैपिटल से लिख रहा हूं मैं, that fxy should be differentiable. And second, the equation, इसको हम अगर इक्वेशन में लिखें fxy is equal to 0, इसे इस फॉर्म में लिखेंगे fxy is equal to 0. This defines y implicitly, y को implicitly define कर रहा है, implicitly as a function, differentiable function of x, as a differentiable function of x. Say y is equal to hx, है ना? मतलब यहाँ पे y को भी अगर I will separate, I cannot separate, तो y is again a function of hx. So what will happen? So suppose you have fxy is equal to 0. तो भी इसको अगर हम w से डिनोट करते हैं, सपोज w इज इक्वल टू fxy इज इक्वल टू 0, है ना? जैसे ये था आपके पास, ये फंक्शन है, अगर मैं इसे लिखूं तो इसे क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट fxy इज इक्वल टू 0, है ना? अब यहाँ y क्या होगा? y इज अगेन अ फंक्शन ऑफ x. अगर आप y को लिखना चाहें तो y x के फंक्शन बनना होगा कुछ, ये क्योंकि इम्प्लिसिट फॉर्म है, तो इसको मैं w लिख सकता हूँ हमेशा. w तो सपोज कर ही रहे हैं, w इज इक्वल टू fxy इज इक्वल टू 0, w या z, बेसिकली वी आर रिप्रेजेंटिंग y w हियर. So if w is equal to fxy, so what happening now? कि w is a function of xy, और y अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं है, y is again a function of x. ये तो हुआ, that is implicit form कि w xy का फंक्शन है या f xy का फंक्शन है, and y is again function of x. So I want to find what is the formula. So when I will take dw over dx, तो is equal to 0 है ये, तो dw over dx, this will be how much? अब f को अगर हम बाई पार्ट करेंगे, है ना, तो क्या होगा? ये डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इक्वल टू 0. 0 चल रहा है इक्वेशन. बताइए, देखिए w आपका फंक्शन एक्स वाई का था, y इज अगेन अ फंक्शन ऑफ x. तो अगर y अगेन अ फंक्शन ऑफ x है, तो हाउ आई विल टेक द चेन रूल, dw बाई डी एक्स विल बी व्हाट? डेल एफ ओवर डेल एक्स, है ना? w f है आपका, w ही f है, तो डेल एफ ओवर डेल एक्स डी एक्स ओवर डी एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. अब डेल एफ ओवर डेल एक्स को आई कैन राइट एफ एक्स, ये तो 1 हो गया, प्लस एफ वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज हाउ मच? कितना हो गया? माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई. सो इट इज द फॉर्मूला फॉर implicit differentiation of dy by dx. क्या? माइनस साइन के साथ एफ एक्स अपॉन एफ वाई, इसे ऐसे ऐसा कर सकते हैं, इट इज क्रॉस, नीचे dx है तो एफ एक्स, इट इज dy, so it is fy with minus sign. Minus sign will be there. Okay, so in this way you can find implicit differentiation. जैसे ये प्रॉब्लम अगर इसी फंक्शन का लूं जो मैंने अभी लिखा था आपका, y स्क्वायर minus x square minus sin xy is equal to 0. I want to find dy by dx. बताओ बेटा इसका dy by dx क्या होगा? क्या करूं? Anyone? What is dy by dx of this function? सर माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई. वैसे ही कर सकते हैं, है ना? देखिए, तो पहले मैंने क्या बताया, इसको एफ एक्स वाई में लिख लेंगे. लेट एफ एक्स वाई, अगर ये इधर होता मान लीजिए, तो इसको सबको लेफ्ट साइड में लाके 0 इक्वल लिख देते. इट इज ऑलरेडी गिवन यू इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 0 तो है.
तो आपको अगर dy by dx निकालना है तो डायरेक्ट यू विल अप्लाई फॉर्मूला माइनस fx अपॉन fy। fx का मतलब क्या है अब? कीपिंग y कांस्टेंट, तो हाउ मच बोलिए? सर 2x माइनस cos xy into y। माइनस 2x बोलिए, माइनस 2x माइनस minus y into cos xy. y इंटू cos xy, चलो y यानी अपॉन fy इज हाउ मच? 2y 2y minus 2y minus x into cos xy. x इंटू cos, है ना? साइन का cos हो गया, इसको फिर से किया तो आपका x का तो 1, y का 1, x बाहर, x ऐसे कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस साइन से आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इट विल बी हाउ मच? ये माइनस ऊपर ले गया मैं तो 2x प्लस y cos cos xy xy upon 2y हो minus जाएगा x cos ना? xy। चलो अच्छे से, अगर आप 12th क्लास में कर रहे थे तो कैसे करते थे इसको? ये फॉर्मूला था आपके पास वहाँ पे भी? नो सर, वहाँ क्या करते थे आप? सर सीधा वहाँ पे डिफरेंशिएट करते थे सर। सर dy by dx की फॉर्म में आया था हाँ सर। देखो वहाँ पे आप सीधा करते थे, वही बता रहा था, वहाँ पे आप ये करते थे, सीधा इससे करते थे। रिस्पेक्ट टू y करना है तो 2y dy by dx माइनस 2x minus 2x माइनस cos xy, cos इसे xy बाई पार्ट करा dy हमने, by dx bracket सर, है dy ना? by dx है। x इंटू x dy y by dx dx यस सर। प्लस plus y 1 इंटू y इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप क्या करते थे? dy by dx के टर्म एक तरफ साइड में ले लो, तो देखो dy by dx के टर्म क्या है? 2y माइनस x dy by dx का टर्म एक ये है, एक ये है, माइनस x cos y dy by dx इज इक्वल टू, इसे उठा के इधर ले जाओ, कितना है? 2x प्लस y cos xy, तो dy by dx क्या निकल गया है यहाँ पे? तो सर कोई आ फर्स्ट रहा है, वाले से आंसर जल्दी आ जाएगा सर इसका। है ना? यस तो सर। वहाँ पे तो आपको एक टेक्निक बताती थी ऐसे कर लो, लेकिन जो हम ये जो है आपका ये एक डिराइव फॉर्मूला है, ये आएगा तो sir. सेम ही Yes, sir. आंसर, है ना? सेम, बट इट इज द Excuse फॉर्मूला। me, sir. यस प्लीज, यस। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है किसी को भी? no sir मेरे में तो। यार मुझे तो हो रही है, या नेटवर्क हमें भी प्रॉब्लम हो है? रही है सर। हो रही है सर। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी भाई, जिसके नहीं हो रही थोड़ा सा देखिए नेट अपना, आप थोड़ा हिलिए इधर उधर, मूव करिए, शायद नेट सही हो जाए कहीं, क्योंकि अगर किसी को भी नहीं हो रही होती तो फिर मेरी प्रॉब्लम होती। ठीक है, तो इन बोथ द वे यू गॉट द सेम आंसर। तो आई विल बी अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, इट इज कंपैरेटिवली इजी, क्योंकि यहाँ पे तो एक थोड़ा इजी इक्वेशन थी, अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होती तो कैलकुलेशन आपको ज्यादा टाइम लगता। इन दिस वे यू कैन फाइंड इजीली। So this is implicit differentiation formula. So here I have derived this formula using chain rule. इसीलिए इस चैप्टर में चेन रूल वाले फॉर्म में हमने चेन रूल लगाया इसमें, और फिर भी derive this formula. Similarly, I can extend this formula when you have function of 3 variables. Suppose now it was 2 variables थे, now you have 3 variables that you have f x y z is equal to 0 first thing, a function डिफरेंशिएबल फंक्शन, है ना? डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, तभी हम सब चीजें कर पा रहे हैं, कीप इन माइंड। तो सपोज योर एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, दिस इज अ डिफरेंशियल फंक्शन एंड इट डिफाइंस z implicitly. This defines z implicitly as a function of किसका होगा? वो एफ एक्स वाई का, तो सिंगल था। अब यहाँ पर z क्या है कि एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 और z डिफाइंस एक्सप्लिसिटली एक्स वाई, दैट मीन्स यू हैव नाउ एफ एक्स वाई और z इज सम अगेन फंक्शन ऑफ एक्स वाई, कुछ इस तरीके से है, 2 वेरिएबल्स में है। तो अगेन आई विल ड्राइव द फॉर्मूला, जैसे हमने पीछे फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो व्हाट यू हैव, सो वी हैव, इसको अगर मैं w से लिख दूं, वी हैव w इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। अभी ध्यान रखना है कि w हमारा क्या है, w जो f है, f इज अ फंक्शन ऑफ x y
z, और z इज अगेन अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई आपस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, है ना, लेकिन z जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा, z इज डिपेंडिंग ऑन एक्स वाई। तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स वाई तो वही होंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा y विल ट्रीट एज ए कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू y x विल ट्रीट एज ए कांस्टेंट। लेकिन z में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि z इज अगेन रिटन एज इम्प्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो आई वांट टू ड्राइव फार्मूला नाउ फॉर दिस, बिकॉज इट्स अ फंक्शन ऑफ, तो ओवरऑल फंक्शन ऑफ कितने वेरिएबल्स हो गए, 2, क्योंकि z भी एक्स वाई का फंक्शन ही है। तो व्हाट आई विल फाइंड नाउ, डेल w ओवर डेल x, है ना, यहाँ पर तो आपके पास एक ही था, तो डी डब्ल्यू हमने निकाला था, क्योंकि x का था, y भी x का था, तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। नाउ यू हैव टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y, so I will find del w over del x। तो del w over del x का फॉर्मूला बाय द चेन रूल बताइए जरा। del f over del x into dx over del x over del x, है ना, क्योंकि टू फंक्शन yes, टू वेरिएबल्स हैं, तो del x over del x लिखूंगा मैं, नॉट d, प्लस del f over del y over del x, प्लस del f over del z over del x, है ना, क्योंकि 3 है, 3 इंटरमीडिएट होते हैं तो प्लस साइन 2 आते हैं, 3 वो बनते हैं, एंड दिस इक्वल टू 0, क्योंकि दिस इक्वल टू 0 है। So this implies that del f over del x को I can write fx, del x over del x is 1, del f over del y is fy. What about this del fi over del x? minus fx upon fy। अरे नहीं यार, वो तो d था, ये d कोई है, वहां पे जो आपने रखा था, यहाँ पर ये आपका ध्यान से देखिए, y was डिपेंडिंग ऑन x, तो y यहाँ पर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल था, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, तब हम dy by dx निकाल के लिख सकते थे, है ना। यहाँ पर क्या है, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपस में, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, 0 यार। yes, वी ऑलवेज डिफरेंशिएट y डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, है ना। उसमें हम ये देखते हैं कि अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हो रहा है, व्हाट इज द चेंज हैपनिंग इन y, जब आपका y इज इक्वल टू fx होता है, तो हम देखते हैं कि जब x में चेंज हो रहा है, व्हाट इज द चेंज इन y। अब यहाँ पर क्या है, y और x दोनों ही इंडिपेंडेंट है, तो अगर कोई भी चेंज y में हो रहा होगा, उससे x में क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट है आपस में। तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट हमेशा 0, कीप इन माइंड, ठीक, प्लस del f over del z is fz, एंड del z over del x को ऐसे लिखूंगा, क्योंकि del z over del x अब इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ मैंने बताया z is written implicitly as a function of xy, तो z is dependent, xy independent। तो इससे आपके पास फॉर्मूला निकल के आएगा किसका, del z over del x का, कितना हो गया बताइए, माइनस fx अपॉन fx upon है ना। fz। So it is the formula when you have function of 3 variables where z defined implicitly। तो ये del z over del x का है, वो ये देखिए माइनस fx अपॉन fz। बताओ del z over del y कितना होगा, इससे del z over del y भी निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्ट बता सकता है कोई, yes sir, बताइए, fy upon fz। माइनस, minus fy है ना, यहाँ z upon है तो ये fz। नीचे fz दोनों क्रॉस में आएगा विद माइनस साइन। So it is the implicit differentiation formula for function of 3 variables where z implicitly writing function of xy, ठीक है। In this way you can find it easily। चलो प्रॉब्लम करते हैं जरा एक आध। Example 6 you will try by yourself, और 6 प्रॉब्लम है आपकी, एक्सरसाइज 14 एक्सरसाइज है 14.4, है ना, 4th एक्सरसाइज आपकी, ये 4th
सेक्शन चल रहा है 14 चैप्टर में। फाइंड dw by dt where problem number 6 है। w is given to you z minus sin of xy, x is equal to t, y is equal to ln t, and z is equal to e to the power t minus 1. So you have to find d of w over dt at the point t is equal to 1. ये निकालना है। चलो भाई बताओ जरा, कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? क्या है ये? वेल फर्स्टली व्हाट इज, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 3 sir, 3 sir. यस 3 sir, थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, 3 इंटरमीडिएट वेरिएबल्स है ना, एंड 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंटरमीडिएट है और ये सब t पे डिपेंड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं t r s का नहीं है। तो आई कैन राइट बाय दिस। ये डायग्राम अगर आपने बना लिया तो समझ लीजिए आधा क्वेश्चन तो आपका यहीं हो गया। अब आई वांट टू फाइंड dw ओवर dt। चलो बताओ जल्दी से। dw ओवर dt विल बी व्हाट? del w ओवर del x। हाउ मच? बोलो भाई। some minus cos xy into x sir. इनटू x, So y sir. x कराया तो y। देख लेना भाई, मैं आपको अनसोल्व प्रॉब्लम है, मेरे पास आंसर नहीं है इसका। इनटू 1 sir 1 1। चलो आगे प्लस sir del y upon del y del w over del y is how much? minus x cos xy, माइनस x cos xy। चलो इसे ब्रैकेट में लिख दीजिए। और dy by dt, sir 1 upon t sir. चलो प्लस del w over del z 1 sir, 1 sir. 1, and dz by dt how much? So e to the power t minus 1. 1. बस यही। Yes. ठीक है चलो। अब यहाँ पर जहाँ एक्स वाई आ रहे हैं सबको अब हमें टी में लिखना होगा, ध्यान रखना है। जब डी डब्ल्यू बाई डी टी निकालना है एवरीथिंग शुड बी इन टी ओनली। तो यहाँ सबकी जगह टी पुट करूंगा, फिर उसके बाद टी इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू चेक करेंगे क्या आती है। तो माइनस ये आपका कितना, माइनस वाई, वाई इज एल एन टी, तो माइनस एल एन टी एंड कॉस एक्स वाई, कॉस टी इंटू एल एन टी, ये एंगल है। माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, सो माइनस टी कॉस टी एल एन टी इंटू 1 बाई टी, है ना, टी से टी कैंसिल, ये टी कैंसिल, एंड प्लस ई टू द पावर टी माइनस 1। ये तो इसकी वैल्यू कुछ कैंसिल हो गया क्या? ये नहीं हो रहा, ये एल एन में है, ठीक। ये तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हमें वैल्यू निकालनी है एट द पॉइंट टी इज इक्वल टू 1, बताइए जरा। माइनस एल एन 1 इज हाउ मच है? 0 जीरो होता है ना, Zero log है, log 1 0 Zero ln 1 0। तो फर्स्ट टर्म में आपने Yes, sir. रखा 0 हो गया, ln 1 इज 0। देन माइनस यहाँ रखा आपने cos t, सब minus 1 आ जाएगा 0 हो गया, तो cos 0 इज 1, minus 1 एंड दिस plus हाउ 1 मच? e power minus 1 sir. तो हाउ मच minus- इट इज कमिंग? e टू द पावर माइनस 1, ठीक है। Yes, Yes, इसका sir. आंसर हो गया। चलो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं आपकी डेल जेड वाली। चलिए 31st प्रॉब्लम है, इस बीच में और बहुत सारी प्रॉब्लम है जो यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। 6 के बाद मैंने 31 प्रॉब्लम ली है, इसका मतलब बीच में और कई सारी प्रॉब्लम है। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ वाई प्लस जेड प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये गिवन है, आपको फाइंड करना है डेल जेड ओवर डेल एक्स एंड डेल जेड ओवर डेल वाई, ये फाइंड करना है। चलो बताओ, चलो जल्दी से क्या लिख लें इसको पहले। फर्स्टली simplify कर लें इसको सर। Yes, sir. सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा सिंप्लीफाई करने बैठ के। तुझे बहुत लंबा समय फॉर्मूला बताया तो अभी,
सिंप्लीफाई करोगे साइन का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का भी, ये वाला बहुत लंबा बैठेगा फिर तो। Yes sir, yes sir. डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, इतना इजी। मैथमेटिक्स में शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, फॉर्मूलों का फायदा ये तो होता है डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो एफ एक्स वाई जेड क्या हो गया, इस पूरे को एफ एक्स वाई जेड मान लीजिए आप, क्योंकि एक्स वाई जेड का फंक्शन है। आई कैन नॉट सेपरेट, यू कैन सी इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या लिख सकते हैं किसी को हम एक्सप्लिसिटली, वाई या जेड या एक्स को कैन आई राइट एक्सप्लिसिटली? No sir. नहीं लिख सकते ना, मतलब मैं आई कैन नॉट राइट एक्स इज इक्वल टू सम वाई जेड, आई कैन नॉट राइट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स जेड। तो इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट में आई विल फाइंड द इम्प्लिसिट फॉर्मूला। तो इससे हमने क्या लिख दिया, एफ मान लीजिए बस, लेट अस सपोज दिस इक्वल टू 0। अब डेल जेड ओवर डेल एक्स इज हाउ मच, माइनस एफ, है ना? बताइए जल्दी से, टाइम कम रह गया। माइनस एफ एक्स, बोलो जल्दी से फटाफट, एफ एक्स So cos x plus y. और प्लस 0 प्लस cos x प्लस z, 0 छोड़ो, cos x प्लस z, देन cos y प्लस z हाँ प्लस एंड cos x प्लस y, cos x प्लस z, है ना? z सर। z, क्योंकि उसके टर्म में कर रहे हैं, ये आ गया। अभी हमें इसे निकालना था एट, कोई एंगल दिया हुआ है क्या? हाँ, इसे फाइंड करना एट पाई, कॉमा पाई, इस पे हमें वैल्यू निकालनी है। तो रख दिए जरा, एट पाई कॉमा पाई, बताइए cos 2 पाई प्लस cos सर 2 1 आ पाई जाएगा। अपॉन सब cos 2 पाई प्लस cos 2 पाई, कितना आ गया? 1 या -1। -1?